Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in biology class. Students, in previous lecture, I have discussed with you a topic temperate deciduous forests from some major ecosystem, chapter number 26. This topic was basically from division of terrestrial ecosystem and it was related to forest ecosystem. And today I am going to discuss a second category of forest ecosystem, which is coniferous alpine and boreal forests. In Pakistan, these forests are located in Upper Kagan, Deep, Chillas, Malam Jabba, in Swat Valley, while their worldwide distribution is in Eurasia. Eurasia means it stretches across the Europe and Asia and North America, Canada, south of the tundra. Students, एक short question आता है, what is taiga? Taiga is basically northern coniferous forests are called taiga. These are evergreen forests which are present in northernmost areas. These are coniferous forests and northern coniferous forests are called taiga. Conditions in taiga are harsher than those in temperate deciduous forest because there is more colder temperature than temperate. The winters are longer and colder and prolonged, and the growing season is shorter because growing season involves some warmness, and as there is prolonged winter season, so their winter season is shorter. A few months of warm weather are too short to allow trees the luxurious growth of growing season. Alpine forests, boreal forests. These are two types of forest which are located in taiga. As a result, evergreen coniferous trees populate this type of forest almost entirely with small waxy needles. Waxy needles are basically leaves. Coniferous forest को coniferous इसीलिए बोलते हैं, इनके दो important characteristics होते हैं. पहला characteristic क्या है? Their waxy needles. इनमें क्या मौजूद होती हैं? Waxy needles मौजूद होती हैं. This is first characteristic of coniferous forest. And second characteristic is their cones. They don't make flowers, they have cones. तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो मशहूर हैं, इनकी नीडल्स की वजह से, यानी इनके लीव्स नहीं बल्कि नीडल्स होती हैं, और इनकी कोन्स की वजह से. द वैक्सी कोटिंग एंड स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द नीडल्स रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स. क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर होगा तो उस वक्त भी इनको वाटर लॉस स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए इनकी जो लीव्स होते हैं, लीव्स की शेप ऐसी हो जाती है नीडल लाइक, जिस वजह से उनको नीडल्स बोलते हैं. और दूसरे नंबर की वो वैक्सी कोटिंग उनके इर्द मौजूद होती है ताकि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से बचा जा सके. एंड लीव्स रिमेन ऑन द ट्रीज ईयर अराउंड, और पूरा साल लीव्स जो होंगे वो दरख्त के ऊपर लगे रहेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरग्रीन प्लांट्स हैं. तो टाइगा में एवरग्रीन प्लांट्स, एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो मौजूद हैं. कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन, व्हाइल कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड आर कॉल्ड एज बोरियल. इसका डिफरेंस आता है जो स्पेसिफिकली जो नदरन जो आपके पास टाइगा है वो बोरियल फॉरेस्ट उनको ही हम बोलते हैं. तो जो हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद होंगे उनको अल्पाइन बोलते हैं, और लैटिट्यूड पे मौजूद होते हैं उनको बोरियल बोलते हैं. और लास्ट टाइम मैंने आपको एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस बताया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर हम अपने ग्लोब की इस तरीके से उसकी स्टडी करें, उसको डिवीजन करें, उसको अगर हम डिग्रीज की फॉर्म में अगर हम उसको शो करें, और हॉरिजॉन्टली अगर ग्लोब के इर्द गिर्द हम ड्रा करके हॉरिजॉन्टली उसकी डिस्क्रिप्शन दें, उसकी हम साउथ से नॉर्थ तक की, तो वो लैटिट्यूड होता है. और अगर हम वर्टिकली नॉर्थ टू साउथ उसकी डिस्क्रिप्शन दें तो वो एल्टीट्यूड होता है. तो एल्टीट्यूड पे यानी हाइट्स पर जो मौजूद होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स के ऊपर मौजूद होते हैं फॉरेस्ट, वो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं. और लैटिट्यूड जो होंगे, जो उसकी बॉटम होगी, उसमें जो मौजूद होंगे वो बोरियल फॉरेस्ट होंगे. स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का क्वेश्चन है
जो ये आता है डिफरेंस बिटवीन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, तो आपने दोनों को बताना है कि दीज टू आर coniferous forests located at high altitude and altitude. The small needles, it means the leaves, and pyramidal shape of the conifers. pyramidal shape क्यों है conifers की? क्योंकि conifers जो हैं ये इनकी शेप इसी तरह से होती है, ऐसे कोनिकल शेप के होते हैं ये, इस तरह से। तो इनकी ये जो कोनिफिरस शेप है, इनकी इस कोनिफिरस कोनिकल शेप की वजह से इनको कोनिफिरस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये शेप इनकी जो होती है, इट अलाउज देम टू शेड हैवी स्नो, ताकि जितनी भी स्नोफॉल होगी वो स्नो इनकी कैनोपी पे पड़ेगी और इनकी कैनोपी से यहीं से ही नीचे वो गिर जाएगी, स्नो इनको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये इनकी कैनोपी की शेप जो है वो कोनिकल होती है। Winter is challenge not only for the trees but also for animals such as this snowshoe here. इस डायग्राम में यहाँ पर इसमें ये स्नोशू हेयर दिखाया है। स्नोशू हेयर जो होता है ये इस एरिया का कोनिफिरस जो एरियाज होते हैं इनका, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, तो इस एरिया का ये बहुत नॉर्दर्न जो बेसिकली अमेरिका है उसका ये नेटिव हैबिट है। इसको स्नो शू इसलिए बोलते हैं कि इसका जो हाइंड लिम्ब होता है ना, तो उसके साथ जो पाँव इसका लगा होता है, यानी इसका हाइंड फीट वो लार्जर साइज का होता है। स्नो में इसको वो धंसने नहीं देता इस वजह से। तो ये स्नो शू हेयर इसका प्रीडेटर है बॉबकैट, जो वहाँ पर मौजूद होती है, बहुत डोमिनेंट होती है बॉबकैट वहाँ पर। एंड द हेयर इज आल्सो प्रे फॉर द ग्रेट होम आउल, और इस हेयर जो है ये इसका प्रीडेटर होम आउल भी होता है। तो ये इन सबको भी यहाँ का एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्लांट्स को ही अफेक्ट करता है, बाकी सारे एनिमल्स जो हैं उनको भी यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है। टाइगर एनिमल्स फेस डिमिनिश्ड फूड सप्लाई। टाइगर जो एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, फूड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। बट इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग सब फ्रीजिंग वेदर, जिस वक्त सब फ्रीजिंग वेदर होता है उस वक्त इन एनिमल्स को, टाइगर में जो एनिमल्स यहाँ पर जो मौजूद होंगे उनको बेसिकली सामना करना पड़ जाता है डिमिनिश्ड फूड सप्लाई का और इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का। ये वहाँ की मेन प्रॉब्लम होती है विंटर सीजन में। स्नो कवर एंड टेम्परेचर। स्नो कवर और टेम्परेचर जो है वो उसकी क्या कंडीशंस हैं? देयर इज कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग सिवियर विंटर। टेम्परेचर में बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स इसके टेम्परेचर, हर एक इकोसिस्टम का टेम्परेचर, इनकी एनिमल और प्लांट लाइफ, ह्यूमन इम्पैक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। एनिमल एंड प्लांट टाइप बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट क्योंकि काफी हार्शर होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ इज मच लो। जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ की वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, वो कुछ वही जो स्पेसिफिक कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं वही वाले यहाँ पर वही मौजूद होंगे। लार्ज मैमल्स, बाइसन्स, वुल्फ, ब्लैक बेयर, डेयर, मार्को पोलो शीप, and smaller animals such as small Kashmir flying squirrel, snowshoe hare, wolverine, ये वुल्वराइन जो है ये बियर है, क्रॉस बिल्स ये बर्ड है वहाँ का, आर प्रेजेंट। प्लांट्स लाइक पाइनस विलिशियाना, जितने भी कोनिफर्स हैं, कोनिफर्स में पाइनस की जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी कोनिफरस हैं। तो पाइन्स जो हैं वो सारे यहाँ पे कॉमन है। पाइनस विलिशियाना, पाइनस रॉकबर्जी, एबिस पिंट्रो, पाइसिया स्मिथियाना, सिड्रस ड्यूडारा। सिड्रस ड्यूडारा जो है इसको कॉमनली हम देवदार बोलते हैं, ये हमारे एरिया में भी ये बहुत कॉमन। हमारा एरिया मतलब पाकिस्तान के जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है उनकी बात होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ द क्लाइमेट एंड रिमोटनेस, रिमोटनेस मतलब दूर होते हैं ये, मोस्ट ऑफ द कोनिफेरस फॉरेस्ट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। अक्सर कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, but these forests are major source of lumber for construction. So forests have been cleared in the world. It means they have the human impact on the basis of deforestation. Desert ecosystem. अब सेकेंड इकोसिस्टम जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, पहले हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम कर लिया, अब हम डेजर्ट इकोसिस्टम करेंगे। इन पाकिस्तान यू कैन फाइंड द डेजर्ट इकोसिस्टम इन वेस्टर्न पंजाब,
such as Mian Wali and Bhakkar, where it is known as Thal. In southern Punjab, areas like Port Abbas, Bahawalnagar, Yazman, Bahawalpur, Cholistan, Kanpur, and Rahim Yar Khan also have desert. And in Sindh, this desert ecosystem is called as Thar. So स्टूडेंट्स थल और थर का डिफरेंस आता होता है। तो थल आपने बताना है कि मियाँ वाली और भक्कर वाला, यानी जो है वेस्टर्न पंजाब में जो डेजर्ट है वो थल कहलाता है, फॉर एग्जांपल मियाँ वाली और भक्कर। और सिंध में जो डेजर्ट है उसको थर बोलते हैं। तो ये आपने ये याद रखना है। These biomes are found on every continent, often around 20 to 30 north, जिनके आपने याद रखनी है इसकी लोकेशन कि ये किस किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे यहाँ पर मौजूद है कि these biomes are found on every continent, often around, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, often around 20 to 30 north and south latitude, and also in rain shadows of major mountain ranges. Desert includes a variety of environments. At one extreme are certain areas of Sahara or Kyle where it virtually never rains and there is no vegetation at all. सहारा डेजर्ट में वहाँ पर रेनफॉल नहीं है और कोई वेजिटेशन भी नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं डेजर्ट में, जैसे सहारा का हम बता रहे हैं, तो उनमें रेनफॉल नहीं होता और वो कम्प्लीटली बैरन एरियाज होते हैं। The more common deserts, however, are characterized by widely spread vegetation and large areas of bare ground. अक्सर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वेजिटेशन होती है जो इर्द गिर्द वो दूर दूर थोड़ी थोड़ी स्प्रेडिंग हुई भी होती है उसकी, और दरमियान दरमियान में डेजर्ट होता है। दरमियान में ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है और पैचेस की फॉर्म में कुछ कुछ जगहों पर वेजिटेशन होती है, कुछ जगह बिल्कुल ही इस तरह से होती हैं जैसे ये सैंड ड्यून्स आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं होती। रेनफॉल कितना होता है? रेनफॉल इज लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर, or you can say the 10 to 20 inches, or not at all. Plant life, the plants are often spaced evenly as if planted by hand. Frequently, the perennial plants are bushes or cacti with large shallow root system. इनका रूट सिस्टम जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, ये इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कि इनका रूट सिस्टम डीपर जाता है या शैलो होता है बहुत, यानी कि सुपरफिशियल रूट सिस्टम नहीं होता है। इनकी रूट्स जो होती हैं उन्होंने सॉइल में जो ज़्यादा परसिस्टेंट होगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होगा, उसका रूट सिस्टम उतना ही डीप होगा ताकि मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन रूट्स कर सके। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बाइनियल होते हैं कि जिनका ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है। ये हम एनुअल बोलते हैं प्लांट्स को, बाइनियल बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं। एनुअल होते हैं कि जिनका जो ग्रोइंग सीजन होता है, जिनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 1 ईयर का होता है। जिनका 2 ईयर का उनको बाइनियल, और जिनका 2 से ज्यादा का हो वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। Plants are covered with the waterproof waxy coating or prevent evaporation of precious water. These are adaptation for desert plants. It's an important short question. Water is stored in thick stem of cacti एंड अदर सकुलेंट्स। सकुलेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि ये इनके पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स आप कह रहे हैं कि इनके पास वाटर स्टोरिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो इस वजह से इनको सकुलेंट्स बोलते हैं कि ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो जितने भी डेजर्ट के प्लांट जो वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं वो सकुलेंट्स होते हैं। कैक्टाई भी एक सकुलेंट है। डेजर्ट प्लांट्स कंजर्व वाटर इन ए वैरायटी ऑफ वेज. Cacti and euphorbia have fleshy stems in which water is stored for use during the period of the drought. Cacti और euphorbia ये दो important plants हैं डेजर्ट इकोसिस्टम के। ये सम कॉमन डेजर्ट इकोसिस्टम के जो प्लांट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ये कैक्टस नजर आ रहा है आप लोगों को। एनिमल लाइफ, like plants, animals are also specially adapted to survive on little water. Most deserts appear to be almost completely devoid of animal life. कुछ deserts में बिल्कुल ही animal life नहीं है during the day because the animals seek relief from the sun and the heat in cool underground burrows. In the dark, when desert cool down, horned lizards, snakes, and other reptiles emerge to feed, as do mammals such as kangaroo rat and birds such as burrowing owl.
तो इसमें जो एनिमल लाइफ है वो उनकी ये सारी आपने याद कर लेनी है। और एनिमल्स जब सनी डे होता है, मिड डे होता है स्पेशली, या जो डे टाइम होता है उसमें क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो अपने बरोज में चले जाते हैं और डार्कर पीरियड में शाम के वक्त और रात के वक्त निकल आते हैं। Most of the smaller animals survive without ever drinking at all, getting all the water they need from their food and water produced during the cellular respiration in their tissue. स्टूडेंट्स ये वाली अडाप्टेशन आपने यहाँ के एनिमल्स की पहले भी पढ़ी है, डिहाइड आपने वहाँ पर डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रिच ऑफ उनके जो सीड्स होते हैं उनके सीड्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अक्सर डेजर्ट एनिमल्स इस तरह के प्लांट्स को खाते हैं और उसमें वो उसको खाएंगे और उसको खा के वो अपने मेटाबॉलिकली वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है तो ये वाटर प्रोड्यूस कर लेते हैं। Large animals such as desert bighorn sheep and camel are dependent on the permanent water holes during the driest times of the year. तो वहाँ पर जो वाटर होल्स होंगे उनमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो उसी पर ही डिपेंड है। Human impact. While human activities are reducing the extent of many biomes, they are causing the spread of the deserts, a process called desertification. ह्यूमन इम्पैक्ट का यहाँ पर हम इस जो ये वाला हमारा इकोसिस्टम होता है डेजर्ट इकोसिस्टम, इस पे ह्यूमन इम्पैक्ट इस तरह से है कि ह्यूमंस इस इकोसिस्टम में इंक्रीज का सबब बन रहे हैं। यानी डिजर्टिफिकेशन का डिजर्टिफिकेशन होता है कि किसी भी एरिया का लैंड का जो पहले ग्रो करने वाली हो, कल्टीवेटेड एरिया हो या वहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन होती हो, वहाँ पे कोई भी लाइफ हो, उस पॉपुलेटेड एरिया का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। अ ड्रामेटिक एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल साहिल which borders the southern edge of the Sahara Desert in Africa. अफ्रीका का जो सदर्न एज है सहारा डेजर्ट का जो सदर्न एज है वो फॉर एग्जांपल ये साहिल, ये वो जो सदर्न एज जो है जिसका ये नाम था साहिल। 25 years of the below average rainfall coupled with rapid growth of the human population have caused a steady southward spread of the desert. तो ये साहिल ये जो है इस एरिया में पहले ये वाला एरिया डेजर्ट नहीं था, मुकम्मल डेजर्ट नहीं था, इसमें वेजिटेशन थी, इसमें ट्रीज थे, लेकिन ह्यूमंस ने इनको इस एरिया में ट्रीज की कटिंग कर करके, और वहां पर क्योंकि एवरेज रेनफॉल वैसे ही कम था और जो ट्रीज थे पहले से उन ट्रीज को कट करने की वजह से ये वाला एरिया भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो साउथ जो साइड थी ये सहारा डेजर्ट की जिनमें साहिल है तो वो डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होती गई और सदर्न एज तक बढ़ती गई, साउथवर्ड स्प्रेड हो गया इसका। द साहिल इज एन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड. The loss of the productivity of the ecosystem is nearly irreversible, and massive famines, such as occurred in Ethiopia in the mid 1980s, are tragic results. स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप हो गया। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।